Hi friends, in today's session we start with want of factor numerical part. सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल. So solved example number 2.12 and 2.13 are available on the based of want of factor. So 2.12 statement, 2 gram of benzoic acid dissolved in 25 gram of benzene. Once again solute mass is 2 gram, solvent mass is 25 gram. Shows in a depression in freezing point. Depression in freezing point KF आपको ढूंढना है, वो आपको वैल्यू दे दी हुई है, that is 1.62 Kelvin. Molar depression constant, that is KF of benzene is 4.9 Kelvin kg per mole. What is the percentage of association of acid if it is form a dimer in a solution? Clearly बता दिया हुआ है वो dimer form करेगा. डाइमर फॉर्म करने के बाद कितना परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन है वो आपको ढूंढना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट, दैट इज 2.12. गिवन डेटा सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लीजिए. दैट इज W2 इज 2 ग्राम, KF इज 4.9 ग्राम, दैट इज W1 इज 25 ग्राम एंड डेल्टा TF इज 1.62 Kelvin. So now you are aware about the formula, that is M2 is equal to KF into W2 into 1000 divided by delta TF into W1. Put all this value, ये सारी की सारी वैल्यू ऊपर रख दीजिए. You can find out the M2. If you put all this value, finally you get answer is 241.98 gram per mole. So this is your molar mass of acetic acid according to this given data. Now they clearly tell that they form a dimer. Dimer का मतलब क्या था वो हमने already discuss कर लिया हुआ theoretical के part के अंदर. So now we have a 2 mole of benzoic acid, that is C6H5COOH. It forms a dimer, that is C6H5COOH twice. Now assume कीजिए degree of association हो रहा है X. So after some time 1 minus X is unassociated. So the total number of molecule at equilibrium, जो हमने I and alpha का relationship पढ़ा था उसके अंदर भी मैंने discuss किया था आपके साथ, that is 1 minus alpha की जगह पे 1 minus X is amount of species unreacted and X by 2 part. Why X by 2? Just because it forms a dimer. अगर ट्राइमर फॉर्म कर रहा होता तो X by 3, अगर टेट्रामर कर रहा होता तो X by 4. So 1 minus X unassociated form and plus X by 2. X by 2 क्यों आ रहा है? Just because it forms a dimer. That's why it's 1 minus X by 2. Now find out the I. I कैसे find out करेंगे? I का फॉर्मूला था I is equal to normal molar mass divided by abnormal molar mass. So normal molar mass क्या था? 122. सर ये 122 कहाँ से आ गया? तो सिंपल C6H5COOH. COOH फंक्शनल ग्रुप का 45 and C6H5 is 77. 77 plus 45 you get 122 divided by 241.98. ये कहाँ से आ गया? जो वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की M2 की. You can find out the I is equal to 0.5041. So what is the formula? I is equal to 1 minus X by 2. So X by 2 is equal to 1 minus 0.5041. So you get 0.496. सिंप्लीफाई कीजिए, 2 सामने ले जाइए, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. 2 into 0.496 means 0.992. So degree of association क्या आ गया आंसर? Degree of association of benzoic acid is 99.2%. सिंपल इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, just because it's association in percentage. So 99.2 is your answer. Next solve example 2.13. 0.6 ml of acetic acid having the density is 1.06 gram per ml. It is dissolved in 1 liter of water. The depression and freezing point observed for this strength of acid was 0.205 degrees Celsius. Calculate want of factor. दो चीज आपको ढूंढनी है. फर्स्ट want of factor and dissociation constant of acid. मीन्स एसिडिक एसिड का dissociation constant भी ढूंढना है and want of factor भी ढूंढना है. Read the statement twice and then we start the answer. So let's start with 2.13. First of all we have to find out the number of moles. So number of moles of acetic acid is 0.6 ml दिया हुआ है, multiply by its density 1.06 divided by molecular weight, that is 0.60. Acetic acid is CH3COOH, that is 60. So number of mole मिल गए 0.0106 mole. Next is molality. Molality is nothing but number of moles of solute
divided by mass of solvent in kg. Here in case 1000 ml is equivalent to 1 kg. So divide by 1 करोगे तो number of moles ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे मोलालिटी से. तो मोलालिटी आपकी आ गई 0.0106 मोल पर केजी. नेक्स्ट फॉर्मूला, डेल्टा TF इज नथिंग बट KF इंटू एम. KF की वैल्यू नहीं हो तो भी आपको याद करनी पड़ेगी. 1.86 मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी इज 0.0106 is equal to delta TF is equal to 0.0197. So here in case आपका हाफ पार्ट और हाफ न्यूमेरिकल इज डन. नाउ सबसे पहली चीज क्या ढूंढनी थी, वांट ऑफ फैक्टर आई. वांट ऑफ फैक्टर आई क्या बता रहा है, ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट. ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज गिवन, दैट इज 0.0205 एंड कैलकुलेटेड क्या था, अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 0.0197. सो वहां से आपको आई मिल जाएगा. आई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1.041. नाउ एसिटिक एसिड डिसोशिएट, CH3COOH 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था. व्हेन एसिटिक एसिड डिसोशिएट यू गेट CH3COO minus and H plus. Now initial concentration is 1. At that time dash dash, after some time X amount of species undergoes dissociation, 1 minus X, X and X. If n number of moles are there, so n into 1 minus X, nx and nx. So the total number of moles at equilibrium, total number of moles at equilibrium क्या हो जाएंगे, so n into 1 minus x plus x n plus x. n कॉमन निकाल लिया है, बाकी x की वैल्यू एक ब्रैकेट में ले ली है, तो व्हाट इज लेफ्ट इन दिस साइड, n into ब्रैकेट 1 plus x. so ये क्या मिल गया आपको, नंबर ऑफ मोल्स. Now what is the formula for I? I is nothing but n into 1 plus x divided by n, and n cancel out, you get 1 plus x. I की वैल्यू क्या आई है 1.041, तो आपको x मिल गया यहाँ से. So x is equal to 1.041 minus 1 is equal to 0.041. फिर से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, आपको I मिल गया है ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड 1. सो वहां से आपको मिल गया 1.041. देन आपने क्या किया, डिसोशिएशन. CH3COOH जब भी डिसोशिएट होता है क्या मिलता है, CH3COO minus and H plus. So last part, तो total moles at equilibrium is n into 1 minus x plus x plus x is equal to n into 1 plus x. So finally you can find out your x. अब ये सारी वैल्यू जो है, जो कांस्टेंट था और कैलकुलेटेड था, उसके अंदर रख दीजिए. मीन्स एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, n into 1 minus x, n into 1 minus x, yes or no. तो वहां पे वो वैल्यूज रख दीजिए. जैसे वैल्यू रखोगे क्या मिल जाएगा, दिस. एसिटेट आयन NH प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, NX. सो NX के अंदर वैल्यूज रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू. नाउ फाइनल आंसर आपको क्या ढूंढना है, Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. नाउ Ka इज नथिंग बट CH3COO minus into H plus divided by CH3COOH. अब सारे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज आपको पता है, पुट ऑल दिस वैल्यू, सिंप्लीफाई कीजिए एंड यू गेट योर आंसर. Ka इज इक्वल टू 1.86 into 10 to the power minus 5. शायद आप लोगों को याद हो तो 11th में मैंने आप लोगों को बताया था, यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू ऑफ Ka ऑफ एसिटिक एसिड 1.86 into 10 to the power minus 5. सो वही चीज आज हमने प्रूफ भी कर ली है और आंसर नियरली इक्वल टू सेम आएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल. ऐसे ही 2 न्यूमेरिकल आपको एंड एक्सरसाइज में भी अवेलेबल है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस एंड एक्सरसाइज न्यूमेरिकल. Next end exercise 2.32. Calculate the depression and freezing point of water when 10 gram of CH3CH2CHClCOOH is added to 250 gram of water. Ka 1.4 into 10 to the power minus 3 and Kf 1.86. So this is all about your statement 2.32. Let's start the answer. सबसे पहली चीज, मोलिकुलर वेट ऑफ गिवन कंपोनेंट दैट इज CH3CH2CHClCOOH इज 122.5. सो ये स्पीशीज 10 ग्राम दी हुई तो नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ लिया. नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. गिवन मास क्या है 10 डिवाइड बाय मोलर मास इज 122.5. यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स. नेक्स्ट इज मोलालिटी 8.16 into 10 to the power minus 2 divided by 250 ml multiply by 1000 just because in kg. So that's why you can find out the molality 0.3264.
वंस अगेन यहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, दैट इज मोलालिटी फाइंड आउट कर लिए, नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ लिए और उसके बाद मोलालिटी ढूंढ लिए. अब वंस अगेन इक्विलिब्रियम कंसेप्ट किस हिसाब से है देखिए, CH3 CH2 COOH व्हेन डिसोशिएट बेसिकली क्या होता है, COOH में से H निकल जाता है. सो व्हाट इज लेफ्ट इन दिस साइड, CH3 CH2 CHCl COO minus and H plus. Now initial concentration is 1, at that time there is dash and dash. After some time 1 minus alpha is undergoes dissociation, तो alpha and alpha. अगर C concentration हुआ तो C into 1 minus alpha C alpha C alpha. याद आ रहा है 11th standard में सेम किया था हमने. So what is left in this side, Ka is equal to C square alpha square divided by C into 1 minus alpha. C cancel out. So what is left, C alpha square. So alpha is nothing but Ka by C. अब Ka आपको दिया हुआ है गिवन डेटा के अंदर, और C मीन्स कॉन्सेंट्रेशन आपने मोलालिटी के टर्म्स में ढूंढ लिया ऊपर ही. सो मोलालिटी का टर्म्स याद आ रहा है, आपने अभी ढूंढा, दैट इज 0.3264. सो मोलालिटी आपने ढूंढ ली है, उसी की वैल्यू यहाँ पे रखनी है. सो यू कैन फाइंड आउट योर अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोशिएशन. अल्फा इज रेडी. What's next? Next is want of factor. Want of factor I की बारे में डिस्कशन करेंगे. Want of factor I is nothing but 1 plus alpha divided by 1 is nothing but 1 plus alpha. So 1 plus 0.065, ये सर 0.065 कहाँ से है, अभी हमने अल्फा ढूंढा है, उसी की वैल्यू यहाँ पे रख दी. तो what you get I is equal to 1.065. तो फाइनल आंसर डेल्टा TF is nothing but I into KF into M. I की वैल्यू रखी, KF की वैल्यू दी हुई है, मोलालिटी हमने अभी ढूंढी है. सो पुट ऑल दिस वैल्यू, यू कैन गेट द आंसर. अब देखिए एक चीज गलत हो जाएगी तो सारी की सारी चीज गलत हो जाएगी. सो कैलकुलेशंस अच्छे से चेक कर लीजिएगा, यू गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू SI. एक और न्यूमेरिकल है 2.33. सो नेक्स्ट इज 2.33. 19.5 gram of CH2FCOOH is dissolved in 500 gram of water. The depression in freezing point of water is observed 1 degree Celsius. Calculate the want of factor and dissociation constant of fluoroacetic acid. Once again statement दो बार पढ़ लीजिएगा, then we start the numerical part. So let's start. M2 find out करना है. M2 का फॉर्मूला क्या है, 1000 into KF into W2 divided by W1 into delta TF. सारी की सारी वैल्यू दी हुई है, 1000 into 1.86, 19.5 is given mass divided by 500 multiply by 1. You can find out that is 72.54 gram per mole. So this is all about your observed value. अब कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली 78. सो I क्या हो जाएगा, M2 कैलकुलेटेड डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड. कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई, 78, दैट इज थियोरेटिकल वन, एंड ऑब्जर्व्ड कितना आया, 72.54. सिंप्लीफाई करोगे आपको क्या मिल जाएगा, I का वैल्यू 1.0753. नेक्स्ट वंस अगेन डिसोशिएशन कैसे करेंगे, वही इक्विलिब्रियम स्टाइल. CH2F COOH is nothing but COOH में से H निकल जाएगा, that is FCH2 COO minus H plus. Initial concentration is 1 after some time 1 minus alpha. Next if concentration is C into 1 minus alpha, C alpha. So I is equal to 1 plus alpha is equal to I minus 1. So I की वैल्यू क्या है, अभी हमने ऊपर ढूंढा, that is 1.0753 minus 1. तो now you can get alpha is equal to 0.0753. अब क्या करेंगे सर, ये अल्फा का Ka ढूंढना है, तो Ka is nothing but C alpha into C alpha divided by C into 1 minus alpha. C cancel out, what is left, C alpha square divided by 1 minus alpha. तो अल्फा की वैल्यू से हम Ka by C की फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रख देंगे. So as we already discussed, Ka is nothing but C alpha square. So C क्या है, 0.5. अल्फा की वैल्यू हमने ढूंढ ली, स्क्वायर कर लीजिए, यू कैन गेट योर Ka. सो लाइकवाइज यू कैन फाइंड आउट अल्फा, I एंड K. जो तीन चीज ढूंढनी थी कि तीनों की तीनों हमने ढूंढ ली. ऐसे दो और एग्जांपल एंड एक्सरसाइज में अवेलेबल है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दैट. नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.40 and 41. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2. अब ब्रैकेट में क्लियरली I दे दिया हुआ है, I is 2.47. डिजॉल्व्ड इन 2.5 लीटर वॉल्यूम दे दिया हुआ है,
सो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू भी दे दी है, दैट इज 0.75 एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल ढूंढने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने पे गिवन मास की वैल्यू से आपको W मिल जाएगा। सो लाइकवाइज वी कैन स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल। सो 2.40 राइट हैंड साइड कॉर्नर में देखिए सारी की सारी गिवन वैल्यू मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखी हुई है आपके लिए। I क्या है 2.47, R 0.082, T 300 डिग्री सेल्सियस, V क्या है 2.5 लीटर, पाई क्या है 0.5 एटमोस्फियर। व्हाट इज आवर फॉर्मूला? पाई इज इक्वल टू ICRT, तो I इज इक्वल टू N बाई VRT। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, N को इक्वेशन का फॉर्म बना लो, तो N इज इक्वल टू पाई बाई V डिवाइड बाई I इंटू R इंटू T। सारी की सारी वैल्यू हमारे पास रेडी पड़ी हुई है। पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड व्हाट वी गेट N इज इक्वल टू 0.0308। नाउ हमें क्या ढूंढना है, गिवन मास दैट इज W। तो नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू W बाय M, तो W इज इक्वल टू N इंटू M। सो नाउ कैल्शियम क्लोराइड का मोलिकुलर वेट क्या है, Ca इज 40 एंड Cl इज 35.5। ये दोनों को मिला के मिल जाएगा 111 ग्राम पर मोल। तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व इज 0.0308 multiply by 111. So what you get 342 gram. So this is your 2.40. 2.41 determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liters of water at 25 degrees Celsius, assuming that complete dissociation takes place. Given data extract कर लीजिए, then we start the numerical. Now K2SO4 का I क्या होगा, 2K plus plus 1SO4 minus, that is 2 plus 1 is equal to 3 आपका I हो गया। R is 0.0821, T is nothing but 298, 0.25 मिलीग्राम है दोस्तों, याद रखिएगा 0.25 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा वरना प्रॉब्लम होगा। K2SO4 का मोलर मास है 174 एंड V वॉल्यूम इज 2 लीटर। सो व्हाट इज आवर इक्वेशन, पाई इज इक्वल टू ICRT, C की जगह पे N बाई VRT। N मीन्स नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल मीन्स गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास क्या है 0.25 milligram, so 0.025 divided by 174 is molar mass, multiply by volume कितना है 2 लीटर, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर क्या है 298, put all this value and you can multiply and divide 5.27 into 10 to the power minus 3 atmosphere। दोस्तों अभी तो आप यहाँ पे हाँ में हाँ भरोगे, हाँ सर आंसर आ रहा है, न्यूमेरिकल इजी है, बट जब आप खुद से करने बैठोगे तो इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। So calculate each and every numerical 2 times without calculator, and if you get the same answer then you are through with the numerical part. So this is all about from my side. So this is all about your last session। I want of factor के भी numerical खत्म हो चुके हैं, तो almost chapter number 2 के सारे numerical done। So thank you।